Yeah. So let's begin with this topic. This is in continuation with the previous topic that we are learning advanced and miscellaneous treatment. And advanced and miscellaneous treatment में हम ये टॉपिक में थे जहाँ पे हमने रिवर्स ऑस्मोसिस कवर किया था. एक्टिवेटेड कार्बन हमने कवर किया हुआ है. Today we'll see a removal of iron and manganese as well as a membrane filtration. So most probably I think we are going to see a removal of iron and manganese, this much only. Okay. So let us begin with this. Iron and manganese, if the presence of iron and manganese are there in water, in drinking water, it creates a problem. It creates a problem in the taste, in your order. ये ज़्यादातर वहाँ ज़्यादा हमको प्रॉब्लम करता है. इवन दो आपका जो कलर है, आपका वाटर का कलर है, वो भी आपका चेंज हो जाता है. सो हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज एन आयरन एंड मैग्नीज प्रॉब्लम. आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपके वाटर में आयरन और मैग्नीज का प्रेजेंट है. सो if you consider a raw water problem and what are the causes, we'll see tap water comes out clear but then develop a black or a rust colored particles after a standing. अपने कुछ टाइम के लिए आपने उसको स्टिल किया तो आपको उसका वाटर का कलर कुछ डिफरेंट दिखेगा. सो वो जो डिफरेंट है, यानी रस्ट कलर दिखता है, अभी रेडिश कलर में दिखेगा थोड़ा सा आपका. तो किसके कारण होता है? दैट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ अ फेरस आयरन और मैग्नीशियस मैग्नीज Mn2+. And tap water has a reddish hue when the first drawn and on a standing clear with the 24 hours. It is happening just because of the significant particulate iron in the water. Likely source are rusted galvanized iron pipes or connection a rusted pressure tank and rust from the well causing of pump. Then third one is a tap water varies from a blackish. सर Yeah, hello. स्क्रीन आपने शेयर नहीं की. We were there in this slide where we have talking about the removal of iron and manganese and how can you recognize an iron and manganese problem. So we have covered this 2 points and then we are going for third point. Tap water varies from a blackish hue to almost a black when a first dawn but clear after standing for 24 hours. ये जो आप देख रहे हो रॉ वाटर का प्रॉब्लम है, तो ये किसकी वजह से होता है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व मैग्नीज इन द वाटर. ज्यादा अमाउंट में मैग्नीज आपके यहाँ प्रेजेंट रहा तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ब्लैकिश कलर अपीयर हो सकता है. वाटर हैज अ मेटालिक टेस्ट, स्टेन अपीयर ऑन अ क्लॉथिंग, particulates are in the water. आपका जो वाटर है उसमें टेस्ट मेटालिक कलर. हेलो, यस सर. कि आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ होगा शायद कि वाटर में ऐसे मेटालिक टेस्ट आपको लग रहा होगा या आपके कपड़ों में स्टेनिंग आ जा रहा है. Why it is happening? It is happening just because of a metal in the water. उसके प्रेजेंस के कारण ज्यादा इसमें होता है. So a problem caused by iron and manganese in a household water. What are the problems which are basically happening? तो ये तो हमने पढ़ा, ये प्रॉब्लम जनरली आते हैं. Neither iron nor manganese in a drinking water present a health hazard. ये आपको हेल्थ हजार्ड नहीं है बिकॉज हमारे बॉडी में आयरन भी रहना चाहिए, मैग्नीज भी रहना चाहिए. तो एज सच बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके एक्टिविटीज में दिख सकता है. जैसे आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, रस्टिंग हो सकता है, मेटेलिक टेस्ट आ सकता है. सो दिस इज द ओनली प्रॉब्लम. एक्सेप्टेबल लिमिट नहीं होता है, ठीक है. However, a small percentage of a population may be affected if they suffer from an excess of iron in the body. Iron and manganese at a very low level may contribute a disagreeable taste. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो इसका ये है ना, इसके टेस्ट में प्रॉब्लम आता है. Staining in a mineral building in a home water system. Visible problem can be seen when the amount of a dissolved iron exceed about a 0.2 mg per liter. I repeat, 0.2 mg per liter ये Fe का concentration है जो water में रहना चाहिए. And when dissolved manganese exceed about 0.05 mg per liter. तो आप ये समझ के चलिए कि this is a permissible limit for iron, this is a permissible limit for their manganese, 0.2 and 0.05, right? So usually iron and manganese concentration in well water do not exceed 10 mg per liter and 2 mg per liter respectively. Iron का 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, होता नहीं है, और मैग्नीज का 2 से ज्यादा होता नहीं है. हाई concentration of iron and manganese are rare. ये बहुत कम चांसेस ऐसा होता है because iron and manganese are chemically similar. They cause a similar problems. Iron will cause a reddish brown staining in laundry, sinks, toilets, tubs, dishes, utensils, and even glassware.
Manganese act in the similar way but causes a brownish black stain. हेल्थ hazard मैं बार बार बता रहा हूँ कि हेल्थ hazard तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमारे जो यूटेंसिल्स है, हमारे जो क्लोथ्स है, हमारे जो एक्सेसरीज वाली चीजें हैं, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आता है. इवन आपका जो टेस्ट है वो सबसे ज्यादा खराब होता है. सोप एंड डिटर्जेंट डू नॉट रिमूव दिस स्टेन. आपके जो सोप है, डिटर्जेंट है, वो इस आसानी से इसके स्टेन को रिमूव नहीं कर सकते. एंड देन यूज ऑफ a chlorine bleach and alkaline builders can intensify the stains. Iron and manganese deposit will build up in a pipeline, pressure tanks, water heater, and a water softeners. This reduces the availability, quantity, and the pressure of the water supply. Iron and manganese accumulate become an economic problem when water supply or softening equipment must be replaced. ये आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ही कंडीशन में होगा जब आपका पानी, आपका जो वाटर सप्लाई जो है, सॉफ्टनिंग इक्विपमेंट मस्ट बी रिप्लेस. These accumulate also result in associated increase energy cost. जो आपका एक एनर्जी कॉस्ट जो है उसको वो बढ़ाने के फुल इसमें मतलब बढ़ा सकता है. such as for pumping water through constructed pipes or heating water with the heating rods coated with the iron and manganese minerals. ठीक है. Iron and manganese are concentrated in the water by contact with a certain rock and minerals and occasionally man-made materials such as iron and steel pipe. The longer the contact time with the rock and the minerals, the higher the level of a concentration. Groundwater supply usually what require treatment for a high level of iron and manganese. When exposed to air, iron and manganese are very reactive and break down rapidly. This is a very important point. ध्यान रखो कि when exposed to air, जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो आयरन और मैग्नीज है वो उसके फ्रैक्शन पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, वेरी रिएक्टिव एंड ब्रेक डाउन इन रैपिडली. उसके स्मॉल फ्रैक्शंस पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर दिस रीजन यू विल नॉट बी फाइंड देम इन अ स्ट्रीम और रिवर. यही एक रीजन है कि ये हमारे रिवर में या स्ट्रीम में इतनी इजीली हमको अवेलेबल नहीं होता, हमको समझ में नहीं आता. दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म पार्टिकल्स एंड फॉल टू द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम. अब ये क्या होता है कि ये इसलिए भी समझ में नहीं आता क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, वो जल्दी से जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है, सेटल हो जाता है. तो हमको वो आपके सरफेस में, स्ट्रीम सरफेस में या आप बोलिए कि आपका रिवर सरफेस में कहीं आपको मिलता नहीं है. ग्राउंड वाटर रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हेन ब्रॉट टू अ सरफेस ऑफ अ वेल and will at the point convert to a visible red brown black particle and move through a pipes of your homes. तो ग्राउंड वाटर में भी जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तब उसमें ये कलर अपीयरेंस में आ जाता है, जो आप फर्दर आपके जब भी आप यूज करोगे तो आपको सेम कलर आपको दिखेगा. फ्रीक्वेंटली हाइड्रोजन सल्फाइड also is present in a water that contains iron and magnesium. हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें भी आपका आयरन एंड मैग्नीशियम का कंपोजिशन अवेलेबल है. When hydrogen sulfide is present in a small quantity, it often will be dedicated after it goes through a chemical change in the hot water heater. तो आपका ये जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपके वाटर टेम्परेचर के वेरी करने से भी उसमें ये चेंजेस आएंगे और उसमें वो अपीयरेंस आ जाएगा. Now this iron bacteria is very important which causes most of the things जो आयरन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसमें सब में आपका आयरन बैक्टीरिया का मेजर रोल है. Some type of bacteria derive their energy from feeding on dissolved form of iron and manganese in water. Hold 1 minute. Some type of bacteria derive their energy from feeding on a dissolved forms of iron and manganese. आपका जो डिसॉल्व फॉर्म में जो भी कुछ कंटेंट होगा, कुछ बैक्टीरियाज है जो रेसिड्यू छोड़ देते हैं आपके वाटर में, जिसकी वजह से आपका जो वाटर का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, मतलब आयरन और मैग्नीज के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. वाइल दिस बैक्टीरिया डू नॉट कॉज हेल्थ इश्यू फॉर ह्यूमन, जैसे मतलब लेकिन ये आपके हेल्थ रिगार्ड्स में कोई प्रॉब्लम देता नहीं है. दे डू प्रोड्यूस अ ब्राउन एन आयरन और अ ब्लैक ब्राउन एन मैग्नीज स्मेली मटेरियल इन अ वाटर टैंक्स. ये कुछ रेसिड्यू छोड़ जाते हैं, जो बैक्टीरिया से कोई रेसिड्यू छोड़ जाते हैं तो इन टॉयलेट टैंक्स और अदर प्लेसेस वेयर वाटर स्टैंड्स. और कहाँ पे ज्यादातर होता है, जहाँ पे आपका स्टिल वाटर है, रुका हुआ पानी है, वहां पे जनरली ये चीजें हो जाती है. इन एडिशन टू अ फॉल ऑर्डर द जेलेटिनस मटेरियल कैन क्लॉग प्लम्बिंग
and water treatment equipment and staining is a more pronounced because of its concentration. अगर कोई पानी बहुत दिन तक जमा हुआ है एक जगह पे, आप उसमें अगर पानी में हाथ डालोगे तो यू विल फील जेलेटिनियस, आपको थोड़ा सा चिप सा लगेगा हाथों में. वाई इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आयरन बैक्टीरिया. ये इसके कारण होता है, आपके हाथों में से चिपचिपा सा थोड़ा सा महसूस होगा. ओके, एंड स्टेनिंग इज अ मोर प्रोनाउंस्ड बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन. और ये आयरन बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है जिसके कारण आपका स्टेनिंग का प्रॉब्लम आ सकता है. इफ यू नोटिस आयरन बैक्टीरिया इन एनी वाटर फिक्सचर्स in the houses, then it probably also is present in the well. Shock chlorination of the well and a piping system is in the house is needed to kill it and remove from the piping and the water fixtures. Normally आपके आयरन बैक्टीरिया जो है या आपके जो हाउस होल्ड फिक्सचर्स है, पाइपलाइंस है, ये उसमें भी आपको बहुत कॉमनली तरीके से मिल जाता है. तो उसे भी हमें मतलब रिमूव करना बहुत जरूरी है, मतलब पीरियडिकली हमें उसको रिमूव करते रहना चाहिए. The basic procedure is to add a quantity of a bleach to the well. अब इसको रिमूव करना है ये आयरन बैक्टीरिया को, तो उसका बहुत बेसिक तरीका है और बहुत सिंपल तरीका है कि आपने क्या करना है, ब्लीच पाउडर यूज करना है और उसे वॉश कर देना है या उसे क्लीन करते रहना है. देन पम्प द क्लोरिनेटेड वाटर इनटू द हाउस ओपनिंग टैप्स until a chlorine is smelled. आपको कब तक इसको यूज करना पड़ेगा या कब तक आपको ब्लीचिंग करना पड़ेगा? जब तक उसका क्लोरीन का स्मेल आपको आता नहीं. अगर क्लोरीन का स्मेल नहीं आया तो समझो कि वो आपका इफेक्टिव नहीं है. देन लेट द क्लोरिनेटेड वाटर सिट इन द पाइप फॉर 8 to 12 hours so it has a enough contact time to kill the bacteria. जब क्लोरीन बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा तब उसके उस सेल्स में टिश्यूज में जाएगा, उसके कांटेक्ट में आने से उसके सेल्स या टिश्यूज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो बैक्टीरियाज है वो मरते हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज है वो मर जाते हैं. सो उसको कम से कम टोटल 12 hours रिक्वायर्ड है. An additional source of a dissolved iron may be in the pipeline, pressure tank, and other water fixtures. Many older homes have a galvanized iron water pipes and fixtures. अभी क्या है, ये आज का दौर है, ये मतलब कुछ ये 10 सालों में क्या हो रहा है कि हम पाइपलाइंस पीवीसी पाइप्स को यूज कर रहे हैं पाइपलाइंस में. लेकिन जब प्रीवियस वन हम पुराने से बात करें, आज से 50 साल 60 साल पुराने जो घर बनते थे उसमें हम गैल्वेनाइज पाइप को ही यूज करते थे. So water with the high acidity from a dissolved carbon dioxide or other acid can be a corrosive to metal pipe and fixtures. To establish an equilibrium, iron and other metal will be dissolved from the pipeline. The acidity of water can be reduced by injecting an alkaline mineral such as a sodium carbonate or by running the water through a filter impregnated with an alkaline material. Because different metals are more or less corrodible, a solute to the problem may be to use a more resistant metal or a plastic pipes. A plumber should be consulted regarding a material that are best suited for a local water condition. Now, ये सब रीजन के कारण क्या है कि आजकल यही लेस कोरोडेबल है पीवीसी पाइप, आपको प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा डक्टाइल है, ज्यादा चल जाता है, तो प्लम्बर्स को भी काम करने में इजी है, ईजनेस है. तो मतलब मार्केट में पीवीसी पाइप्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं और लोगों को यही बताया जा रहा है कि एंड इट इज आल्सो सजेस्टेड टू टेक अ पीवीसी पाइप्स इंस्टेड ऑफ अ गैल्वेनाइज्ड पाइप. सो वाटर ट्रीटमेंट मेथड फॉर आयरन एंड मैंगनीज रिमूवल. सो उसका द वेरी फर्स्ट मेथड इज पॉलीफॉस्फेट ट्रीटमेंट, उसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग एजेंट. ओके, तो पॉलीफॉस्फेट आर अ ब्लेंड ऑफ अ फॉस्फोरिक एसिड एंड अदर कंपाउंड्स. आई रिपीट, अ फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, एंड बोला कि अदर कंपाउंड दैट सराउंडेड आयरन, कीपिंग इट एज सीक्वेस्टेड. मतलब क्या है कि कंपाउंड्स के बीच में आपका ये आपका आयरन जो है वो उसके बीच में, इट लाइक अ सैंडविच और यू कैन से अ ट्रैप्ड वन, देयरफॉर इट्स अनअवेलेबल टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो आयरन है वो आपका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता एंड बिकम अ प्रॉब्लम. This treatment will not remove the metallic taste often associated with the excessive iron level because the iron is not removed. अब क्या है कि आयरन हमने ट्रैप कर दिया है, वो किसी और जिसमें रिएक्ट नहीं कर रहा, हमने उसको ट्रैप कर दिया है, जिसकी वजह से जो आपका वाटर का टेस्ट है तो वो एज इट इज रह जाता है, लेकिन और कुछ प्रॉब्लम उसमें मटेरियल यूज में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन टेस्ट में तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा क्योंकि आयरन एज इट इज है उसमें. It should not be used for a water containing dissolved iron concentration in excess of 2 mg per liter or a combination of iron and manganese of more than 3 mg per liter. Polyphosphate usually is introduced into the water system using a chemical injection pump.
Injection should occur as close to the well discharge point as possible and before the pressure tank or a hot water heater. Determining the amount of phosphate needed to lower your iron and manganese level may take a little trial or error. The water will have a slippery feel if too much is added. कहने का मतलब है कि पॉलीफॉस्फेट को अब नॉर्मल तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करो और यू कैन सिंपली गिव अ केमिकल इंजेक्शन इन अ पंप और वहां से आपका वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा एंड शुड आल्सो अकर क्लोज टू द वेल डिस्चार्ज। और जो भी आप एक्ट हो जहाँ पे भी आपको डिस्चार्ज करना है उसके आसपास में ही रह के करो एंड रह के करना एज पॉसिबल एंड बिफोर द प्रेशर टैंक और अ हॉट वाटर हीटर। ठीक है। In addition, heat from cooking will release the iron and manganese and allow it to react with the oxygen and from particles. Be aware that the polyphosphate are derived from a phosphorus and may contribute to a depletion of available oxygen in the nearby water bodies. Yes, of course, this is an important point where be aware that the polyphosphate are derived from the phosphorus. ठीक है, फॉस्फोरस से आपका पोरस फॉस्फोर क्या है, पॉलीफॉस्फेट आपका प्रोड्यूस हो रहा है या बन रहा है। तो फॉस्फोरस एंड मे कंट्रीब्यूट टू अ डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन। जो आपके ऑक्सीजन है उसी को ये क्या करना है, खाना शुरू कर देता है, उसे डिप्लीट कर देता है। ठीक है, तो वाटर बॉडीज के आसपास में रहोगे तो वाटर बॉडीज को क्या है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर ये पॉलीफॉस्फेट अगर उसके आसपास रहेगा तो वो उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन को ही वो खत्म कर देगा। सो दैट इज नॉट डिजायरेबल। Second one is the iron exchange. So dissolved iron and manganese in water can be exchanged from a sodium on an exchange resin on zeolite. This process of iron and manganese remove is the same ion exchange process that remove a hardness of a calcium and a magnesium. Yes, iron exchange हमने already आपका जो hardness है उसको remove करने के लिए हमने पढ़ा है. The same concept can be used for the removing of the iron and manganese. अब सेम फंडामेंटल को यहाँ पे भी आप आसानी से यूज कर सकते हो। सो मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सो दिस इज अ ग्रीनलैंड। तो ग्रीन सैंड। तो ग्रीन सैंड में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एडजॉर्प्टिव ऑब्लिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये एडजॉर्प्टिव ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम यहाँ पे होगा। वेयरएज इस पूरे सेटअप में आप देखोगे तो ये जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर में आपका ग्रीन सैंड एक रखा गया है। ग्रीन सैंड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सैंड जो हम लोग इस आयरन और मैग्नीज को रिमूव करने के लिए यूज कर रहे हैं। One of the first type of a filter to be used to treat a water containing iron and manganese was the green sand filter. The active material in a green sand is the glauconite. Glauconite is a green clay mineral that contains iron and has iron exchange properties. अब ये सैंड है तो सैंड में कुछ ना कुछ तो आयरन कंटेंट आपका ऑलवेज प्रेजेंट रहता ही रहता है। So it has a concentration of the iron. It has a exchange property as well. यानी कुछ दूसरे आयंस को ले लेगा और ये अपने आयंस कहीं और छोड़ देगा, like this. Glauconite often occur mixed with the other material as a small pellets, thus the name green sand. The glauconite is a mined, washed, screened, and treated with a various chemical to produce a durable greenish black product with the properties that allow to absorb a soluble iron and manganese. तो ये जो है आपका green sand, it allows to absorb the soluble iron and manganese. It's kind of a candle. आपका वाटर फिल्टर आपने देखा होगा, उसमें जैसे कैंडल रहता है, तो ये इस तरह से ही है, एक फिल्टर मीडिया है जहाँ पे आपके आयरन और मैग्नीज आके सेटल हो जाएंगे और वाटर को ट्रीट करके आगे बढ़ा देंगे। Most green sand filters are rated to be effective treating water with the iron concentration of 2 or 10 mg per liter. मैक्सिमम 10 mg per liter के लिए आप उसको यूजफुल कर सकते हो। If the pH of the water is lower than 6.8, the green sand probably will not filter out the iron and manganese adequately. So इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो pH है वो हमेशा 6.8 से ज्यादा होना चाहिए, 7 से ज्यादा होना चाहिए। अदरवाइज ये pH अगर आपका कम रहेगा तो ये आपका जो ग्रीन सैंड फिल्टर है ये वर्कआउट नहीं करेगा। The pH can be raised above 7 by running the water through a कैल्साइट प्री ट्रीटमेंट। सो आप कैल्साइट प्री ट्रीटमेंट वाटर को यूज करके आप इसको पीएच को भी आप आगे बढ़ा सकते हो या मेंटेन कर सकते हो। थर्ड वन, या अगर हम सेटअप की बात करें, सो दिस इज योर इनलेट, दिस इज योर अनट्रीटेड वाटर
और इसमें सब देखिए ये आपको ऑप्शनल प्री फिल्टर लगाया गया है, आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाया तो भी चलेगा। देन अगर आप चेम्बर देखोगे ब्लू कलर में, तो इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन टैंक दिया हुआ है। जब वाटर यहाँ पे एंटर करेगा तो ये आपका साथ में ही इसमें ये मतलब मिक्स हो जाएगा। तो इट वाटर विल बी पासिंग फ्रॉम हियर एंड द वेस्ट जो रहेगा वो यहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ पानी है यहाँ से फिर से फिल्टर होके बाहर हो जाएगा। सो फ्री ऑफ आयरन एंड मैग्नीज वाटर यू कैन गेट फ्रॉम दिस साइड। सो इस तरह से ये वर्कआउट होता है। नेक्स्ट इज द क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन भी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, आई विल नॉट गो इन टू मच डीप। सो केमिकल ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय अ फिल्ट्रेशन, I repeat, chemical oxidation followed by a filtration is the accepted method of iron and manganese removal when concentration is greater than 10 mg per liter. याद रखो 10 mg per liter से ज्यादा रहा तो ही आप क्लोरिनेशन में जाओगे, अदरवाइज ये आप देखो 10 mg per liter तक के लिए था, ये भी आपका 10 mg per liter के लिए है, इवन ये भी आपका 10 mg per liter के लिए है। तो अगर 10 mg per liter से ज्यादा है तो यू कैन गो फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, whereas उसको हम क्लोरिनेशन भी हम बोलते हैं। A chlorine solute is injected with a chemical feed pump ahead of a sand filters. Soluble iron and manganese being to settle out almost immediately after the contact with the chlorine solution. However, approximately 20 minutes of contact time is needed to form a particle that can be filtered. This type of system will remove soluble and suspended particle of insoluble iron and manganese from the source of water. तो बैक वॉशिंग के टाइम पे भी इसको ध्यान में रखते हैं। बैक वॉशिंग द सैंड filter to remove a precipitated iron and manganese is an important part of continued filtration. अब क्या होता है, जैसे जैसे हम फिल्टर कर रहे हैं तो आपके जो आयरन और मैग्नीज है वो जाके सेटल हो सकते हैं, लेकिन आपके फिल्टर को बैक वॉशिंग का भी जरूरत रहेगा। तो आप उसे बैक वॉश करके आप जो ऑलरेडी केक फॉर्मेशन हो रहा था आयरन और मैग्नीज को, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। एज विद द ग्रीन सैंड फिल्टर द सिस्टम flow rate should be checked to make sure it can provide the needed rate for a backwashing. An additional advantage of using a chlorination system is it's a bacteria residual effect. Iron and manganese bacteria along with the other bacteria are destroyed. Potential clogging problem in the sand filter are eliminated. Chlorination does not produce a thiomethane THM when organic matter is present in the water. The optimum rate of oxidation of iron and magnesium by chlorination is at a pH of about 8.0 to 8.5 respectively. कहने का मतलब है कि क्लोरिनेशन जो है वो कौन से pH रेंज में ज्यादा अच्छा काम करेगा? It will work between 8 to 8.5 pH. Whereas जब हमने ग्रीन सैंड का जब बात किया तो the pH would be more than 6.8 and preferably you have to maintain the maintain the 7 and above. ठीक है। Whereas आयन एक्सचेंज में पीएच की कोई बात नहीं हुई थी, यहाँ पे कोई पीएच की बात नहीं की हमने। और इवन हमने जब पॉलीफॉस्फेट ट्रीटमेंट की बात किया तो यहाँ भी हमने पीएच के बारे में बात नहीं किया। ठीक है। तो सोडा ऐश, उसको हम जो सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, इंजेक्टेड विद द क्लोरीन विल इंक्रीज द पीएच टू ऑप्टिमम लेवल. Adjusting the pH to alkaline level also reduces the corrosive of the water to pipes and pumping. So all these methods are for the removing of the iron and manganese removal. One more thing, ये जो भी हम इसको ट्रीटमेंट बोलते हैं, these all are the miscellaneous treatment. ठीक है, इसको miscellaneous treatment कहते हैं. Next is the membrane filters, membrane filtration. Now membrane filtration is a very simpler one. क्या है membrane? यानी हम सब जानते हैं कि एक लेयर होगा, लेयर में कुछ पोर्स होंगे, तो वो जो पोर्स होंगे उसके ऊपर उस मेम्ब्रेन का एफिशिएंसी डिपेंड करता है। जब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन का, तो जो पोर साइज है तो इट कैन बी इन द माइक्रो लेवल, इट कैन बी इन अ नैरो लेवल और इट मे बी अल्ट्रा लेवल। सो ये डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट साइजेस के बेसिस में हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो हम बेसिकली हम देखेंगे, जो बात करेंगे, दैट इज माइक्रो फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, नैनो फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, एंड इवन रिवर्स ऑस्मोसिस में भी मेम्ब्रेन यूज होता है। सो रिवर्स ऑस्मोसिस इज आल्सो one of the membrane filters. So a membrane is a thin layer of a semi-permeable material that separates substances when a driving force is applied across the membrane. यानी सपोज करो कि ये अगर आपका मेम्ब्रेन है, ये अगर आपका मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से अगर वाटर पास हो रहा है विथ प्रेशर में उसको पास करा रहा हूँ, तो व्हाट विल हैपन, वो वाटर जो होगा वो पास होके यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन
आपके जो प्रोटोजोआ है, माइक्रोबियल है, या आपका एलिमेंट्स है, आयरन हो गया, आपका मैग्नीज हो गया, वो सब क्या हो जाएगा, वो ये साइड में इस मेम्ब्रेन के कारण यहीं पे अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, यहीं पे रुक जाएंगे, और आपका जो प्योर वाटर है वो फिल्टर होकर यहाँ से बाहर में आ जाएगा। तो मेम्ब्रेन प्रोसेस आर इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, particulate and a natural organic material which can be impart a color, taste and odor of the water and react with a disinfection to form a disinfection byproducts. As advancement are made in a membrane production and a module design, capital and operating costs continue to decline. So ये जो है आपका पोर साइज किस पे, इन सब बातों को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। और आप मेम्ब्रेन प्रोसेस में अब जब भी डिस्कस करते हैं तो वी यूज टू से अबाउट द माइक्रोफिल्ट्रेशन, ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis. When we say microfiltration, तो yes, आपका जो pore size है वो बहुत डिपेंड हो जाता है। तो microfiltration is loosely defined as a membrane separation process using a membrane with a pore size of approximately 0.03 to 10 microns. I repeat, 0.03 to 10 microns. Whereas 1 micron यानी कितना होता है, 0.0001 millimeter. 0.0001 millimeter. I repeat, 1 micron is equals to 0.0001 millimeter. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं approximately 0.03 to 10 microns. A molecular weight cutoff of a greater than how much it is? 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Yeah, greater than 10 lakh daltons and a relatively low feed water operating pressure of approximately 100 to 400 kPa. ठीक है, मटेरियल रिमूव बाय माइक्रोफिल्ट्रेशन इंक्लूड सैंड, सिल्ट, क्ले, आपका algae and some bacteria species. Microfiltration is not an absolute barrier to viruses. However, when used in a combination with disinfection, microfiltration appear to control these microorganisms in the water. Microfiltration remove a little or no organic matter. However, when a pre-treatment is applied, increasing removal of organic material can occur. Microfiltration can be used as a pre-treatment to RO or nanofiltration to reduce the fouling potential. Both RO and nanofiltration have been traditionally employed to dissolve or remove hardness from the groundwater. तो माइक्रोफिल्ट्रेशन को आप जनरली एज अ देखो, जिसको नॉर्मली हम तो एज अ फिल्ट्रेशन के लिए हम यूज करते ही हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये आपके वायरसेस को रिमूव नहीं कर सकता. दिस इज नॉट हैविंग दैट मच कैपेसिटी टू रिमूव वायरसेस. ओके, तो ये प्रॉब्लम है. तो इसके एडवांस में फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जाते हैं. बट स्टिल इसको आप यूज कर सकते हो अगर आप आरओ के लिए जा रहे हो या नैनो फिल्ट्रेशन के लिए जा रहे हो. तो क्या होता है कि जब बड़े पार्टिकल साइज है अगर वो पहले से ही रिमूव हो गए, देन दिस आरओ एंड नैनो फिल्ट्रेशन कैन गिव यू अ गुड एफिशिएंसी. अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि ये जो आपके बड़े साइज है वो पहले से ही पोर्स में आके अरेस्ट हो जाएंगे. तो आपका जो फिल्ट्रेशन होना चाहिए, जो एफिशिएंसी आरओ एनएफ का देना चाहिए था, वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो क्लॉगिंग पूरा हो जाएगा. तो आपको बड़े पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए आप पहले माइक्रोफिल्ट्रेशन से रिमूव कर लो, फिर बाद में आरओ या नैनो फिल्ट्रेशन आप दे सकते हो. सेकंड थिंग इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन हैज अ पोर साइज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.002 to 0.1 माइक्रॉन्स. ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0.03 to 10 माइक्रोन बोल रहा है माइक्रोफिल्ट्रेशन के लिए, और यहाँ पे आप देखो अल्ट्रा के लिए क्या बोल रहा है, 0.002 to 0.1 माइक्रॉन्स. ओके, अप्रोक्सीमेटली 10,000 to 1 lakh daltons and an operating pressure of approximately 200 to 700 kPa. This much pressure we are providing. The primary advantage of a low pressure ultrafiltration membrane process are compared with the conventional clarification and disinfection. तो हमारा जो पोस्ट क्लोरिनेशन है, प्री क्लोरिनेशन है, उसको जब मुझसे हम कंपेयर करते हैं तो क्या है, नो नीड ऑफ ए केमिकल इज रिक्वायर्ड. पोस्ट क्लोरिनेशन बोलो, प्री क्लोरिनेशन बोलो, इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल ऐड कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे केमिकल ऐड करने की जरूरत नहीं है. कोएगुलेंट्स नहीं होगा, फ्लोकुलेंट्स नहीं होगा, डिसइंफेक्टेंट्स नहीं होंगे, पीएच एडजस्टमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है. साइज एक्सक्लूशन फिल्ट्रेशन एज अपोज्ड टू अ मीडिया डेप्थ फिल्ट्रेशन. Constant quality of the treated water in the terms of a particle and a microbial removal process and a plant compactness and simple automation. So these are the advantages over the conventional process. Next one is a nanofiltration. So nanofiltration का जो pore size है, that you can see it is approximately 0.001 micron
Okay, and the weight is molecular weight is 1000 to 1 lakh kilotons. Pushing water through this smaller membrane pore require a higher operating pressure. जैसे जैसे आपका साइज कम होते जाएगा आपको उतना प्रेशर लगता जाएगा. माइक्रो फिल्ट्रेशन में देखिए आपका कितना 400 kPa था, फिर यहाँ पे 700 kPa हो गया. अब यहाँ पे आप देखिए तो 1000 kPa लग गया and then 150 poise जो होता है. This system can remove virtually all cysts, बैक्टीरिया, वायरसेस, ह्यूमिक मटेरियल, जितनी भी चीजें इन सबको ये आसानी से रिमूव कर सकता है आपका नैनो फिल्ट्रेशन. बिकॉज नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन आल्सो रिमूव अल्कलिनिटी, द प्रोडक्ट वाटर कैन बी corrosive. Because nanofiltration membrane also remove alkalinity, the product water can be a corrosive, and measures such as a bleeding raw water and a product water or adding alkalinity may be needed to reduce the corrosivity. अब क्या है कि अगर आपके वाटर में अल्कलिनिटी रिमूव हो जाएगी तो आपका कोरेसिवनेस जो एक्शन है वो सडनली बढ़ जाएगा. सो दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, एंड टाइम टू टाइम हमको थोड़ा सा अल्कलिनिटी उसमें ऐड करते रहना पड़ता है सो दैट हम कोरोसिविटीनेस को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर पाए. नैनो फिल्ट्रेशन ऑल्सो रिमूव हार्डनेस फ्रॉम अ वाटर, ये आपका हार्डनेस को भी रिमूव कर देता है, विच अकाउंट फॉर अ नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन समटाइम बीन कॉल्ड अ सॉफ्टनेस. तो कई बार इसको नैनो फिल्ट्रेशन को हम लोग सॉफ्टनर मेम्ब्रेन्स करके भी हम बात कर लेते हैं. हार्ड वाटर ट्रीटेड बाय नैनो फिल्ट्रेशन विल नीड अ प्री ट्रीटमेंट टू अवॉइड अ precipitation of a hardness ion and the membrane. However, more energy is required for the nanofiltration than your microfiltration and ultrafiltration. The last one is a reverse osmosis. Reverse osmosis is as same as the nanofiltration. हमने रिवर्स ऑस्मोसिस कल ही डिस्कस किया हमारी क्लास में कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है हायर टू लोअर, ये हमने देखा था लास्ट टाइम. रिवर्स ऑस्मोसिस कैन बी इफेक्टिव रिमूव नियरली ऑल इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स फ्रॉम द वाटर. जितने भी सॉल्ट्स प्रेजेंट है सबको वो रिमूव कर सकता है. RO can also effectively remove radium, natural organic substances, pesticides, cysts, bacteria, and viruses. RO is particularly effective when used in a series with multiple units. Then disinfection is also recommended to ensure the safety of the water. So this has the advantages over the other filtration units. Okay, so this is all about this topic जिसमें हमने आज देखा कि मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन क्या है, रिमूवल ऑफ आयरन मैग्नीज कैसे कर सकते हैं. सो एट द 5 मार्क्स दिस कैन बी आस्क्ड, और ये थोड़ा सा रिमूवल ऑफ आयरन मैग्नीज एक पसंदीदा टॉपिक भी है, एग्जामिनर के लिए जनरली पूछ लेते हैं, और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन भी उसका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में आ जाता है. सो काइंडली प्रिपेयर दिस और द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको हेल्प करेगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास. If you have any doubts, and you can stay over here and ask me. If you don't have any doubts, then you can punch your roll number and then you can leave for another classes, or you can have a break. So thank you very much. That is only from my side.